अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम कुछ नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारे पास है ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। इन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सही, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग सिंपली मीन्स इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन and releasing of carbon dioxide, or we can also define breathing as intaking of oxygen from the environment and releasing of carbon dioxide to the external environment is known as breathing, or breathing is also known as external respiration. Clear? Similarly, the process of breathing involved two phases: inspiration and expiration. How inspiration and expiration takes place? First come to inspiration. During inspiration what happens? So during inspiration diaphragm and external intercostal muscle contract. Clear? During inspiration, diaphragm and intercostal muscle contract. Okay, where is diaphragm? Diaphragm is present at the base of each lung. Clear? Intercostal muscle are diagonally present in the rib cage, and we know that intercostal muscle are of two types: external intercostal muscle and internal intercostal muscle. Similarly, during breathing also abdominal muscle are involved in the process of breathing. Clear? अच्छा, अब ये जो abdominal muscle होते हैं ये डायफ्राम के नीचे होते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेरे पास है thoracic cavity, ये मेरे पास है डायफ्राम। इस डायफ्राम के नीचे जो मसल प्रेजेंट है that are known as abdominal muscle. It's mean the diaphragm involved in the separation of abdominal cavity and thoracic cavity. Clear? अब हम आते हैं that is जो हमने स्टार्ट किया हुआ that is inspiration. So in inspiration diaphragm and external intercostal muscle contract. Clear? अब जैसे ही डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो जो रिब्स केज होते हैं ये रिब्स के ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आ जाते हैं ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। द रिब्स केज मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। So due to movement of ribs cage forward and upward, the size of thoracic cavity increases. Okay, size of thoracic cavity increases. So to the movement of ribs cage in upward and backward direction, the size of thoracic cavity increases. Due to increase in the size of thoracic cavity, the pressure inside the lungs cavity decreases. अब जैसे ही लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सो वी नो दैट एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में कम है, तो ये एयर आसानी से नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल के थ्रू एल्वियोलाई में एंटर हो जाएगा। अब इस एयर का लंग्स में एंटर होना दैट इज द पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन एंड टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही एयर एंटर हो जाता है हमारे पास इंस्पायरेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं एक्सपायरेशन की तरफ। एक्सपायरेशन में हमारे पास डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हमारे पास कंट्रैक्ट होगा। दोबारा सुने,
एक्सपायरेशन में हमारे पास डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स व्हाइल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल contract. As a result of relaxation of diaphragm and external intercostal muscle and contraction of intercostal muscles, the size the rib cage move backward and downward. Due to the movement of rib cage in backward and downward direction, the size of thoracic cavity decreases. So as the size of thoracic cavity decreases, the pressure inside the lungs cavity increases. So due to the increase in the pressure of lungs cavity, the air will easily move from inside of the lungs to the external environment. Again, air is moving from internal environment to from high pressure to external environment from low pressure to. तो पॉइंट मिल रहा है कि the releasing of air. So जैसे ही एयर की रिलीज होगी that will be the point of expiration. तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. अब हमारे पास है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम. What is respiratory or pulmonary volume? Respiratory volume is that volume means the amount of air inhaled or exhaled or stored at a given time in the lungs is known as respiratory volume. Again, the amount of air or exhaled are stored in the lung at given time is known as respiratory volume. मतलब inhalation के टाइम जो एयर इंटर हो रहा है, एक्सहेलेशन के बाद जो एयर रिलीज हो रहा है और इसके साथ साथ वो एयर जो लंग्स में स्टोर्ड है, तो ऐसे एयर के वॉल्यूम को हमें लेना होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. Then respiratory volume have different types: tidal volume, residual volume or complemental volume. Clear? What is tidal volume? Tidal volume is that volume of air that inhaled or exhaled during one quiet breathing is known as tidal volume. The amount of air inhaled or exhaled during one quiet breathing is known as tidal volume. मतलब ये कि हमारे पास अब यहाँ पे मैं नॉर्मल केस में हूँ, इस टाइम वो एयर जो मैं इनहेल कर रहा हूँ और एक्सहेल कर रहा हूँ, तो इस एयर के वॉल्यूम को हमने कहना होता है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम हमारे पास होता है 500 ml. इट्स मीन कि ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस अब इस टाइम में कितना एयर इनहेल कर रहा हूं 500 ml, मैं कितना एयर एक्सहेल कर रहा हूं दैट इज 500 ml. इसके बाद फिर हमारे पास है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that remain in the lungs after forceful exercise. The amount of air present in the lungs, the amount of air that is present in the lungs after forceful exercise, such volume of air is known as residual volume. इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के टाइम हम जो एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन के बाद वो एयर जो लंग्स में बच जाएगा उस एयर के वॉल्यूम को हमें कहना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम. अच्छा, इसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ये हमारे पास होता है 3000 ml और 1500 ml दोनों लिख सकते हैं. इसके अलावा एक दूसरा भी है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, दैट इज कॉम्प्लीमेंटल एयर. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटल एयर?
the amount of air that exhaled during forceful exercise. Such volume of air is known as complemental air. इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सहेल करते हैं उस एयर के वॉल्यूम को हमें कहना होता है कॉम्प्लीमेंटल एयर। क्लियर? अब ये हमारे पास कितना हो सकता है? दैट इज अबाउट 3.5 लीटर। कितना हो सकता है हमारे पास? 3.5 लीटर और 3500 ml। क्लियर? ये तो रहे हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। इसके अलावा एक दूसरा टर्म भी यूज होता है, दैट इज लंग्स कैपेसिटी। कि लंग्स कितना एयर अपने अंदर स्टोर कर सकता है। सही? तो लंग्स की वो एबिलिटी या वो कैपेसिटी जिसमें वो एयर को स्टोर करता है, उस कैपेसिटी को हमें कहना होता है लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो एयर को स्टोर कर सकता है? दैट इज फ्रॉम 5000 टू 600 ml। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, इसके अलावा हमारे पास जेंडर पे डिपेंड करता है, डिजीज पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमारे पास फैक्टर देखे जाते हैं कि उस पर्सन की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से फिर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और उसकी लंग्स कैपेसिटी की ये वैल्यूज निकालते हैं। सही? तो ये रहे हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी। इसके बाद फिर हमारे पास है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। हम एयर को इनहेल भी कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं। अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये आया हमारे कंट्रोल में है, मतलब दैट इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ब्रीथिंग इज एक्चुअली इनवॉलंटरी प्रोसेस। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ, वॉलंटरी हो सकता है बट जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। तो इसी वजह से ब्रीथिंग हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन है। अब ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह कंट्रोल होता है? चूंकि हमने पढ़ लिया है कि ब्रीथिंग कंप्लीट होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, तो होता क्या है कि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस कंट्रोल होता है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, और ब्रेन में एक रीजन है दैट इज नोन एज हाइंड ब्रेन, और फिर हाइंड ब्रेन में एक रीजन है दैट इज नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में टू रीजन है, वेंट्रल पोर्शन और डोर्सल पोर्शन। Ventral portion is also known as inspiratory center. Similarly, dorsal portion is also known as expiratory center या portion. Why? Because this ventral portion control process of inspiration. Dorsal portion control the process of expiration. So, on the basis of physiological process, they are given ventral portion और डोर्सल पोर्शन और इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर। अब हमारे पास इंस्पायरेशन किस तरह कंट्रोल होता है कि जो वेंट्रल पोर्शन होता है जो कि इंस्पायरेटरी सेंटर है, यहां से निकली होती है टू नर्व निकली होती है। उन टू नर्व्स को हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व। तो यहाँ पे जो वेंट्रल पोर्शन है यहाँ से निकली होती है फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व। फ्रेनिक नर्व मैसेज लेके जाती है डायफ्राम तक। इंटरकोस्टल मसल एज द नेम इंडिकेट इंटरकोस्टल नर्व मैसेज देंगी दैट विल बी ऑफ इंटरकोस्टल मसल को। लेकिन ये जो फ्रेनिक नर्व है और इंटरकोस्टल नर्व है, ये जो मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज किस लिए होता है? एक्चुअली दैट मैसेज इज फॉर कंट्रैक्शन। तो क्या होगा कि वेंट्रल पोर्शन से फ्रेनिक नर्व के थ्रू इंटरकोस्टल नर्व के थ्रू मैसेज आएगा डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल को। अगेन मैसेज फॉर व्हाट? मैसेज फॉर कंट्रैक्शन। तो जैसे ही यहां से कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी,
कंट्रैक्शन जैसे ही हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। सही, बिल्कुल इसी तरह एक्सपायरेशन का प्रोसेस भी हमारे पास डोर्सल पोर्शन या एक्सपायरेटरी सेंटर से कंट्रोल होता है। एक्सपायरेशन में हमारे पास क्या होगा कि जो डोर्सल पोर्शन है एक्सपायरेटरी सेंटर, यहाँ से एक मैसेज आएगा, वो मैसेज इंटरकोस्टल नर्व के थ्रू आएगा और फ्रेनिक नर्व के थ्रू आएगा। फ्रेनिक नर्व मैसेज देगा डायफ्राम को, इंटरकोस्टल नर्व मैसेज देगा इंटरकोस्टल मसल को। अगेन वो मैसेज हमारे पास किस लिए होगा, वो मैसेज फिर हमारे पास होगा that will be for expansion या रिलैक्सेशन। तो जैसे ही हमारे पास इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम को मैसेज मिलेगा रिलैक्सेशन के बारे में, तो जैसे रिलैक्सेशन के बारे में मैसेज मिलेगा तो अगेन यहाँ से हमारे पास एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास ब्रीथिंग का एक इनवॉलंटरी एक्शन। बता दिया है कि ब्रीथिंग हमारे पास एक इनवॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी हो सकता है बट दैट इज जस्ट फॉर अ टाइम।